Hello everyone, welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. This is the lecture for class 12th. Previously we were doing, in the last class we did inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric function we did, just gave the introduction of inverse trigonometric function, its domain, its range. Now let us do some properties, some identities and some questions related to that. I am starting with 6 identities, or we can say 6 properties. On all 6 are same. I am starting with this, that if we are having sine inverse then sin x, if we are having outside we are having बाहर जो मेरे पास है वो है sin inverse और अंदर है sin, ऐसी cos inverse है अंदर है cos, that means बाहर है inverse trigonometry अंदर है same trigonometry और यहाँ पर कोई एंगल आएगा क्योंकि sin है तो यहाँ पर एंगल आएगा sin x. अगर ऐसा है sin inverse sin x, so that will give me the value as x, but the condition is that this x should belong to the principal range, of that particular inverse trigonometric function in all these formulas. We can check all these are the principal range of that particular inverse trigonometric functions. Sin inverse sin x, cos inverse cos x, tan inverse tan x, cot inverse cot x, sec inverse sec x, cosec inverse cosec x. All these are giving me the value as x, but the condition is that this x should belong to the principal range of that particular inverse trigonometric function. That is, sin inverse का होता है ये, cos inverse का 0 से पाई हमने कल किया था, tan inverse का -π/2 से π/2 open interval. All the range, principal range we have already done yesterday. So I am writing, अगर इन जनरल बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स और अंडर ट्रिग्नोमेट्रिक x, दिस इज sin cos tan cot से कुछ भी होगा. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंडर ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ एंगल विल गिव मी x, वेयर x बिलोंग्स टू द रेंज या फिर वी कैन से प्रिंसिपल रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक x will give me the value. ये सारा वही है, sin inverse sin x, cos inverse cos x, tan inverse tan x, cot inverse cot x, sec inverse sec x, cosec inverse cosec x. That will give me the value as x, but this x should belong to the principal range of this particular inverse trigonometric function. Then that will give me the value as x. Okay, let's do few questions for this. You will understand better कि कब it will give me the value as x और कब it will not. First question I am doing is sin inverse. Suppose we are having sin inverse sin π/6. तो I will write this is sin inverse sin x और sin inverse की रेंज होती है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल. अब ये जो π/6 है, this π/6 belongs to this π/6 belongs to -π/2, π/2. So इसका आंसर अपने आप में π/6 हो जाएगा, because it is satisfying that condition. Sin inverse sin x is belonging to the range, so we can say that the answer is π/6. This is correct, absolutely correct. Now suppose I am doing second question, that is sin inverse sin 2π/3. Sin inverse sin 2π/3 is the value, and the range of sin inverse is this same, what, -π/2, that is -90 degree से +90 degree, and 2π/3 is outside the range. I will say that 2π/3 does not belongs to -π/2, π/2 close interval. इसका मतलब इसका आंसर 2π/3 नहीं होगा, इसका आंसर 2π/3 नहीं होगा. मुझे इसको अपनी तरफ से एफर्ट करके 11th क्लास के मेथड से उसको मुझे रेंज में लाके तब उसका आंसर x बनेगा. रेंज में कैसे ना है, तो इसका स्टैंडर्ड ब्रेक होता है, आई कैन राइट दैट एज साइन इनवर्स. बाय 11th क्लास आई कैन राइट दैट एज sin π - π/3. break of 2π/3 is π - π/3. You can check 3π - π will be 2π/3. Now sin π minus theta, trigonometry 11th class, this is 0, this is π/2, this is π, this is 3π/2 and then 2π. π minus मतलब π से कम, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो दैट विल गिव मी द वैल्यू एज sin इनवर्स sin π/3. Sin inverse sin π/3. Now I can say that this π/3 belongs to -π/2, π/2 close interval.
So we can say that its answer is pi by 3. Its answer is pi by 3. Let us do few more questions based on this because this is very important topic. कब कटेगा कब नहीं कटेगा we have to check. कब that will be sin inverse sin x will be x. Suppose I am doing the question as tan inverse tan 3 pi by 4. Tan inverse tan 3 pi by 4 is the question. Tan inverse का जो range होता है that is minus pi by 2 comma pi by 2 open interval. Minus pi by 2 comma pi by 2 open interval. So this will be tan inverse tan pi minus pi by 4. Tan inverse tan pi minus pi by 4. This is it. Now pi minus means this is 0, this is pi by 2, this is pi. Pi minus means second quadrant. Second में tan होता है negative. So this will be tan inverse minus tan pi by 4. This is tan inverse minus tan pi by 4. I have to make it tan inverse tan x. Only then it will be this. तो हम एक काम कर सकते हैं क्या कि भाई ये तुम्हारे पास ये है tan inverse, इसको मैं x अज्यूम करता हूँ. Suppose this is x. तो this is tan. हमने प्रॉपर्टी की थी कल that tan inverse minus x क्या होता था minus tan inverse x. तो tan inverse इसको मैं मानता हूँ x. तो tan inverse minus x will be what? Minus tan inverse x. x क्या है? tan pi by 4. Tan inverse minus x is minus tan inverse x. Now this pi by 4 belongs to this range. So we can say that tan inverse tan x will be x. So minus pi by 4 is the answer. Minus pi by 4 is its answer. Let us do one more question based on this because this is very important. 1 mark question may come from this topic. 1 mark के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं CBSE बोर्ड में लास्ट ईयर से. Suppose I am doing the question as cos inverse cos 7 pi by 6. Cos inverse की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई क्लोज इंटरवल. 0 से पाई क्लोज इंटरवल. Cos inverse cos 7 pi by 6 will give me the value as cos inverse. अब ये 7 pi by 6, this 7 pi by 6 does not belongs to this. 7 pi by 6 पाई से ज्यादा हो गया नहीं है. So I will write that cos inverse cos 7 pi by 6 is cos pi plus pi by 6. Cos inverse cos pi plus pi by 6. Now cos pi plus theta बाहर तो आ गया cos inverse. ये है cos pi plus theta. Cos pi plus मतलब this is pi. Pi plus मतलब थर्ड क्वाड्रेंट. और थर्ड में cos क्या होता है? नेगेटिव. तो I will write minus cos pi by 6. I will write minus cos pi by 6. Now suppose this is x. Cos inverse minus x is given by pi minus cos inverse x. Cos inverse minus x कल किया था हमने प्रॉपर्टी that cos inverse minus x is given by pi minus cos inverse x. So cos inverse minus x is given by pi minus cos inverse x. Cos inverse minus x is pi minus cos inverse x. x क्या है? Cos pi by 6. अब ये जो pi by 6 है ये इसकी रेंज में है और बाहर cos inverse है अंदर cos है तो that will give me the value as x. So pi minus pi by 6 will give me the value as 5 pi by 6. It will give me the value as 5 pi by 6. We can do this by another method, that is if I will write directly cos inverse cos 7 pi by 6 as cos inverse cos 2 pi minus 5 pi by 6 भी कर सकते हैं. इसको चेक कर लो. 12 pi minus 5 pi 7 pi by 6. अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पर होता है 2 pi. 2 pi माइनस मतलब 2 pi से कम और यहाँ पर cos क्या होता है? पॉजिटिव. So that will give me the value directly as cos inverse cos 5 pi by 6. और 5 pi by 6 सीधा का सीधा इसकी रेंज में आता है. 5 pi by 6 जो है वो पाई से कम है, 0 से बड़ा है. So I can say that its answer is 5 pi by 6. Both are correct. Both the methods are correct. You can use any method. ये ब्रेक बच्चों को ज्यादातर याद नहीं होता. ये रटा होता है 7 pi by 6 होता है pi plus pi by 6. लेकिन ये नहीं होता. आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो. Both are correct. अब एक थोड़ा सा इसी टाइप में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी देखेंगे इसी टाइप में. और वो डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या है? वो है साइन इनवर्स साइन 2. ये
साइन इनवर्स साइन 2 की आपको वैल्यू निकालनी है, इवैल्यूएट करना। अब यहाँ पर ये जो 2 है बेटा ये डिग्री में नहीं है, दिस इज इन रेडियन। हमेशा जो भी गिवन होगा तुम्हें वो रेडियन में ही होगा, जब तक कि कहा ना जाए, जब तक डिग्री ना लगे। ये 2 रेडियन है, दिस इज 2 रेडियन। और साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से +π/2। तो कैसे पता लगाया जाए रेंज में है कि नहीं है? पता लग जाएगा। पाई की वैल्यू क्या होती है? दैट इज 3.14। तो -3.14/2 से +3.14/2 के बीच में आ गया ये। दैट मीन्स -1.57 से +1.57 के बीच में इसकी वैल्यू आ रही है। अब ये जो 2 है ये इससे बाहर है बेटा। ये 2 जो है ये इसकी रेंज, जब भी क्वेश्चन ऐसा है तो इसको ऐसे कर लेंगे, उसका रेंज लिख के पाई की वैल्यू पुट करके आई कैन चेक कि भाई वो उसकी रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। रेंज में नहीं आ रहा, ये 2 इससे बाहर है। नाउ साइन के केस में आई कैन राइट साइन इनवर्स। अब इस साइन 2 को आई कैन राइट साइन π-2 बिकॉज साइन π-θ इज साइन थीटा। हमने पढ़ा 11th क्लास में। साइन π से कम मतलब सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और पाई में नो चेंज होता है। तो साइन 2 को आई कैन राइट एज साइन π-2। अब अगर मैं इसको ध्यान से चेक करूं, पाई होता है 3.14, 3.14 - 2 क्या हो गया? 1.14। लिखना नहीं है यहाँ पर। 3.14 - 2 क्या हो गया? 1.14। अब 1.14 इसकी रेंज में है, और जब 1.14 इसकी रेंज में है तो दैट विल गिव मी द वैल्यू सिंपली एज π-2 बिकॉज साइन इनवर्स साइन x, और ये जो x है अब ये इसकी रेंज में है, जो रेंज बन रहा है। Because 3.14 - 2 is 1.14 belonging to this, so we can say that this is its answer is π-2. In the same way, suppose the question is sin inverse sin 10. The question is sin inverse sin 10. If the question is sin inverse sin 10, then we can say that again same problem. Range क्या है? Range है -1.57 से +1.57. 10 तो बहुत बाहर है। अब चेक करना पड़ेगा इसको बार बार। अगर मैंने π-10 किया तो 3.14 - 10 6 पॉइंट समथिंग आएगा, रेंज से बाहर है। फिर मैंने इसको 2π-10 किया, अगर 2π-10 करते हैं तो 2 × 3.14 6.28 - 10 3 पॉइंट समथिंग, फिर से बाहर है। अगर मैंने इसको 3π-10 किया, 3π-10 3 × 3.14 9.42 - 10, अब रेंज में आ रहा है। तो मैंने क्या किया? आई एम राइटिंग साइन इनवर्स साइन 10 को मैंने कर दिया साइन 3π-10, लेकिन पहले चेक किया है कि नहीं है। चेक कैसे करेंगे? चेक मैंने इसको ऐसे किया, 3π-10 यहाँ 0 यहाँ पाई, फिर यहाँ 2π, तो 2π + π यहाँ पर ऑब्वियसली 3π आ जाएगा भाई। 0 पाई फिर 2π फिर 3π। अब 3π माइनस मतलब 3π से कम, तो 3π से कम में ऑब्वियसली क्या हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अगर देखा जाए कॉन्टिन्यूएशन पाई में चलाएं तो 3π-10 क्या हो गया? 0 पाई 2π, और देखिए 3π-10, तो 3π-10 यहाँ पर वैसे 3π होता नहीं, 2π के बाद फिर हम π ऐड करते हैं। देखिए तो 2π पर 3π यही बनेगा। अगर इसको ब्रेक भी कर दे तो π + 2 2π + π-10 कर ले। इसको ऐसे कर सकते हैं। मान लो ऐसा नहीं करना, क्या करोगे आप? 2π + π-10 कर लिया, यहाँ लगा लिया ब्रैकेट। आप साइन इनवर्स लिखा, मैं बता रहा हूँ कि इसकी वैल्यू कैसे बनेगी। साइन इनवर्स साइन 10 बता रहा हूँ कैसे बनेगी, ये चीज ठीक है, तो रब कर देंगे बाद में। अब 2π + θ sin π-10 sin 10 होता है। सो वी कैन डायरेक्टली राइट दैट दिस कैन बिकम साइन इनवर्स साइन 3π-10। हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 3π- का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट ही बनेगा। नाउ 3π-10 का मतलब क्या हो गया? 3π-10 का मतलब हो गया 3 × 3.14 - 10 9.42 - 10 0.58 which is belonging to this range. So we can say इसका आंसर सीधे क्या आ जाएगा? इसका आंसर सीधे आएगा 3π-10, ये इसका आंसर। So this was how to find the values of trigonometric inverse trigonometric x should be equal to x when x is belonging to that particular inverse trigonometric function. इसमें से 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। एक प्रॉपर्टी और कर लेते हैं, बाकी प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रॉपर्टी बहुत आसान सा है। प्रॉपर्टी क्या है? एक आइडेंटिटी टाइप समझो उसको, और वो क्या होता है? दैट आइडेंटिटी टाइप है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। जहां पर ये x क्या होता है? ये x होता है इसका डोमेन। x का डोमेन क्या होता है? -1 से 1 क्लोज इंटरवल। ये पहली आइडेंटिटी है। इसमें दूसरी आइडेंटिटी बनती है, वो टाइप 1 था, ये टाइप 2 की बन रही है, तो इसमें साइन। अब ये इसमें दूसरी बनती है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, वो भी होता है π/2।
फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, क्योंकि tan इनवर्स कॉट इनवर्स दोनों का डोमेन क्या होता था, रियल नंबर। और थर्ड और लास्ट होता है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू होता है पाई बाई 2 वेयर x बिलोंग्स टू रियल माइनस माइनस 1,1 ओपन इंटरवल। ये सब हमने ये 3 आइडेंटिटी होती है। मान लो मैं एक का प्रूफ बताई हूँ, मैं एक का बताई था, बाकी दोनों वैसे ही हो जाएगा। मान लो इसको करते हैं, तो मैंने क्या किया, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू y, मैंने अज्यूम कर लिया कि साइन इनवर्स x क्या है, y है। अगर साइन इनवर्स x y है तो इसने क्या इंप्लाई किया, दिस इज इंप्लाइंग x है, साइन इनवर्स वहां जाके साइन हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दूसरी साइड क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ से x बन गया साइन y, जब x की वैल्यू साइन y है तो आई एम राइटिंग दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 11th क्लास के मेथड से इस साइन y को मैंने साइन को कॉस किया, तो साइन को कॉस किया तो एंगल को 90 से माइनस करना पड़ेगा। साइन y इज गिवन बाय cos 90 माइनस y, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा। साइन को जब भी cos में चेंज करना होता है तो एंगल को पाई बाई 2 से माइनस कर देते हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैं cos को यहां ले आया, जब cos को यहां ले आया तो यहां की ये cos इनवर्स x बन गया भाई, ट्रिग्नोमेट्री यहां के क्या हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जब भी दूसरी साइड जाएगा तो cos इनवर्स x बन गया पाई बाई 2 माइनस y, और ये y एक्चुअली में है क्या, दिस इज cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस व्हाट इज y, y इज साइन इनवर्स x, तो ये बन गया साइन इनवर्स x। और यहां से जब मैं साइन इनवर्स को यहां ले गया तो इसने मुझे क्या आइडेंटिटी दी, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। In the same way, we can prove these two properties as well. So till now we have studied 6 property of negative, sin inverse minus x, tan inverse minus x और cosec inverse minus x। जो हमने कल किया था उस पे माइनस आगे जाता है, cot inverse में, sec inverse में और cos inverse में पाई से माइनस होके, जैसे cos inverse minus x, पाई माइनस cos inverse x, वो हमने कल किया था। फिर आज हमने क्या किया, sin inverse sin x, cos inverse cos x, tan inverse tan x, cot inverse cot x, sec inverse sec x, cosec inverse cosec x, वो x बन जाता है अगर x बिलोंग करता है उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल रेंज को। और फिर ये 3 आइडेंटिटीज है, sin inverse x प्लस cos inverse x पाई बाई 2, tan inverse x प्लस cot inverse x पाई बाई 2, sec inverse x प्लस cosec inverse x पाई बाई 2। इनका यूज करेंगे हम क्वेश्चंस में, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो। कुछ आइडेंटिटीज का आइडेंटिटीज और भी है, दैट आइडेंटिटीज विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। So today we have described 6 properties of that inverse and now 3 this. So rest we will discuss in the next video. So thank you.